Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Farooq, your course instructor for GIS and remote sensing. This is week number 6, and in the week number 5, we already talked about the vector-based GIS data processing and analysis. And we learned different type of input functions, how to produce the vector-based data layers, and then we talked about the different processing functions like digitization and editing and scanning, and then we talked about the feature based overlay analysis functions, and then the layer based overlay analysis function, and then we talk about the topology as well, and then we talked about the output functions. Those are actually the functions those are used to display the output data information based on the analysis. So we will continue talking about the vector-based data analysis in few next slides, and then we will talk about the raster-based GIS data analysis models. So previously we talked about the symbology output functions. Those are used to display the information that we obtained after performing some sort of analysis. तो उसमें सबसे पहले for example एक method है single symbols method, जिसमें ये होता है कि आपने लेट्स सपोज आपके पास पाकिस्तान के प्रोविंसेस का मैप है, तो उसमें आपने जो है वो एक प्रोविंस को एक कलर से शो करना है. तो फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास मैप है ये शो कर रहा है कि किसी एक प्रोविंस का मैप है, उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आपने उसको एक कलर से शो कर दिया, राइट. Then there is another kind of symbology technique, that is categorical symbology. इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन कितनी है, और उसको आपने फॉर एग्जांपल किसी खास डिजिट से वो कम है, ज़्यादा है, या किस रेंज में आती हैं, तो वो रेंज वाइज आपने डिस्ट्रिक्ट जो है उसको इस तरीके से आपने डिफरेंट कलर से शो कर दिया, ठीक है. Similarly, let's suppose you are going to talk about a kind of a quantitative analysis about particular phenomena. For example, कि ground water contamination है, तो आपने ये देखना है कि different districts में ground water की contamination कितनी है, ठीक है. It means कि this is a kind of same kind of information, but you are going to display it with different shades. जिसमें आप बता सकते हैं कि अगर higher concentration है ground water contamination की, तो उसको आप darker color से show कर देंगे, ठीक है. अगर वो किसी जगह पे lighter है, तो आप उसको लाइटर कलर से शो कर देंगे, ठीक है. तो इस तरह से आप एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स की मदद से भी आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. Similarly, you can also use the graphical way to display the different type of analysis on the GIS map, राइट. तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि बार चार्ट से आप बता सकते हैं कि डिफरेंट एरियाज में किसी भी पर्टिकुलर जो आपने फीचर को एनालाइज कर रहे हैं उसका क्या ट्रेंड है. फॉर एग्जांपल अगर ये कोई पॉपुलेशन का डाटा है, तो आप देखेंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल्स कितनी है, उसमें जो है वो मेल्स कितने हैं, उसमें चिल्ड्रन कितने हैं. तो इस तरह से आप इस तरह का एनालिसिस जो है वो बार चार्ट्स की मदद से भी शो कर सकते हैं. आप पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, आप कुछ और डिफरेंट जो मेथड्स है GIS बेस्ड अवेलेबल हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. So this is a kind of example where you can use the different type of colors to represent the languages those are being spoken in Pakistan. तो उसमें आप ये देख लेंगे ये this is a kind of application जहाँ पे आप different symbologies को use करके आप जो है वो different languages को जो है वो display कर सकते हैं कि किस region में कौन सी जो है वो language ज़्यादा dominant है वो बोली जाती है. Alright, so this is another type of application जहाँ पे आप एक तो ये कि कलर्स को यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को शो करने के लिए. उसके बाद फिर आप इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप की जो मिनरल्स हैं उसको फिर आप ये भी कर रहे हैं, जैसे मेटालिक है तो उसको आप सर्कल्स की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और आगे उसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो कलर्स की फॉर्म में है. उसके अलावा क्लेज हैं तो वो छोटे सर्कल्स हैं, ठीक है. इसके बाद जैम स्टोन्स हैं तो उसको आप स्टार्स की फॉर्म में यूज कर रहे हैं,
और फ्यूल्स जो हैं वो आप उसको काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर सिंबल है, उसमें भी डिफरेंट शेड्स हैं, उससे आप यूज कर रहे हैं। नॉन मेटालिक जो है वो आपके पास सॉलिड जो रेक्टेंगुलर सिंबल्स है उससे आप उसको यूज करके आप डिस्प्ले कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, राइट। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के फीचर्स को जो है वो डिफरेंट टाइप की सिंबोलॉजी से मैप के ऊपर शो कर सकते हैं। All right. So we will continue talking about the layer-based topological functions या layer-based जो analysis है उसमें आप layers को reclassify भी कर सकते हैं कि layers के अंदर already जो information given है आप उसको कोई और number दे सकते हैं, उसमें जो information है उसको किसी और जो टाइप ऑफ जो इंफॉर्मेशन है या जो टाइप ऑफ सिंबोलॉजी है उसके साथ आप उसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेयर बेस्ड जो ओवरले एनालिसिस है ये फिगर नंबर 6.28 जो है वो अभी आज इंशाल्लाह मैं बुक आपसे शेयर करूंगा, पहले शायद मैंने नहीं की। तो उसके अंदर और पिछले जो लेक्चर में हमने चीजें डिस्कस की वो भी उसी के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो रेलिवेंट जहाँ पे नोटिफाई की गई है कि फिगर ये वाली है तो वो रेलिवेंट चैप्टर के अंदर आप उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और वहां से आप एडिशनल जो है वो टेक्स्ट पढ़ सकते हैं उस पर्टिकुलर फिगर के बारे में, राइट। तो उसमें यू आर ऑलवेज वेलकम कि आप क्वेश्चन जो हैं वो पूछा करें और जो चीज़ समझ नहीं आती उसको आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, आप गूगल पे भी उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेयर बेस्ड ओवरले एनालिसिस में आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, फिर ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स मीन के जैसे अरिथमेटिकल जो फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल डिवीजन है, प्लस है और सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरह के जो फंक्शन है वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स एंड डाटा एनालिसिस क्राइटेरिया को कि डिफरेंट टाइप का जो डाटा है उस पर आपने एनालिसिस कौन सा लगाना है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट ओवरले एनालिसिस इंटरप्रिटेशन भी होती है कि जब आपके पास एक एनालिसिस आपने रन कर लिया है उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको आपने डिस्प्ले कैसे करना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। वो जो इंफॉर्मेशन है जैसे कि प्रीवियस मैप अभी हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है ये वाला, तो इसमें ये देखिए डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आप वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो एज पर यूर रिक्वायरमेंट ये चेंज भी हो सकती है। तो ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप एनालिसिस की मदद से आपके पास आती है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के रिक्लासिफिकेशन जो है, जो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दिस इज द फिगर 6.27। फॉर एग्जाम्पल वी गॉट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो सॉइल मैप है आप इसमें देखेंगे आपके पास डिफरेंट टाइप की सॉइल्स जो है वो गिवन है। फॉर एग्जांपल लॉम, क्ले, सैंडी लॉम, क्ले, सैंड, ग्रेवल, लॉम, सैंडी लॉम, सैंड, लॉम, सैंड, ऐसा ये डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर अवेलेबल है। तो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस ऑन इट, तो लेट्स सपोज आप इसको रिक्लासिफाई करते हैं। रिक्लासिफाई में आप ये कहते हैं कि आपने इसकी सूटेबिलिटी चेक करनी है, मतलब इस मैप की आपने इसमें सॉइल की सूटेबिलिटी एनालिसिस आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। सूटेबिलिटी एनालिसिस, तो सूटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर आपने क्या किया, आपने ये कह दिया कि जहां पे क्ले एंड ग्रेवल है, ठीक है, दोज आर अनसूटेबल, ठीक है। और जहां पे आपके पास इस लेयर के अंदर लॉम एंड सैंडी लॉम है तो इसको आप कह सकते हैं ये सूटेबल है। और फिर उसके बाद इन बिटवीन जो है मॉडरेटली सूटेबल, उसको आप एम से शो करते हैं। तो ये जब आप क्लासिफिकेशन अप्लाई करेंगे अपने डेटा के ऊपर तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी ये वाली, कि जहां जहां पे लेट्स सपोज लॉम जो था हमने इसको सूटेबल कहा था तो एस आ गया, सैंडी लॉम को भी हमने सूटेबल कहा था तो एस आ गया। इस तरह से जहां पे हमने अनसूटेबल कहा था वो यू के साथ रिप्रेजेंटेड है, जहां पे हमने मॉडरेटली सूटेबल कहा था वो आपके पास जो है वो एम से रिप्रेजेंटेड है और उसके बाद यू जो है वो अनसूटेबल। नाउ यू हैव अनदर, यू हैव अ काइंड ऑफ सूटेबिलिटी मैप, ठीक है, लैंड सूटेबिलिटी मैप। इसको फर्दर आप इसको मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये वाली पॉलीगॉन
और ये वाली पॉलीगॉन जो है ये सूटेबल है और ये आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। आप इसमें जो है ना इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मर्ज करेंगे तो आपके पास ये एक ही लेयर बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन थी कि दो लेयर्स में आप सूटेबल को शो कर रहे हैं, तो बेहतर ये कि आप उसको एक ही लेयर से शो कर लें, राइट। सिमिलरली यू हैव अनसूटेबल, ये वाली पॉलीगॉन है, फिर ये वाली पॉलीगॉन है, ये दोनों पॉलीगॉन आपस में एडजेसेंट है, तो फिर आपने क्या किया, इसको भी आपने एक ही लेयर से शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो मॉडरेटली सूटेबल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अब ये आपस में इकट्ठी नहीं है, तो इसलिए ये अलग अलग ही रहेंगे, ठीक हो गया। सिमिलरली सूटेबल में आप देखिए ये भी सूटेबल है, ये भी सूटेबल है, तो ये इकट्ठी आपके पास एक पॉलीगॉन होगी, और जो नीचे वाली जो है वो इसी तरह से, क्योंकि ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, मॉडरेटली सूटेबल अलग से है, ये अलग से, तो इस तरह से ये आपके पास फर्दर रीक्लासिफिकेशन से आपने लेयर्स को रिफाइंड कर दिया और इसमें जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपने उसमें से एलिमिनेट कर दी। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द I mean reclassification function. So now we are going to talk about the overlay process. जो topological overlay process है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक और एग्जांपल यहाँ पे है फिगर 6.28 में, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक लेयर है जिसमें A और B दो फीचर्स हैं, राइट। देन यू हैव अनदर लेयर ऑफ द सिमिलर रीजन, ठीक है, जिसके अंदर दो फीचर्स हैं M और N, ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ओवरले एनालिसिस रन होता है। अब यहाँ पे दो लेयर्स हैं, इस दो से ज्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं, और उनके ऊपर जो फिर ऑब्वियसली जो फंक्शन है वो इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेयर बेस्ड ओवरले एनालिसिस। तो यहाँ पे फॉर द सिंपलिसिटी, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, वी आर जस्ट यूजिंग द टू लेयर्स एनालिसिस, ठीक है। तो जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो आप ये देखें कि ये इस तरह से ये दो रीजन्स थे, ये भी दो रीजन, जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो ये 4 रीजन्स बन जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कि ये AM बन जाएगा, क्योंकि इसमें A का पार्ट आधा इसके अंदर आ गया है, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर M का पार्ट भी आ गया, तो AM और B, उसके बाद यहाँ पे BM आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले पोर्शन में आपके पास ये N है, तो ये बन जाएगा AN एंड BN, ठीक है। और एट्रीब्यूट टेबल को अगर हम देखें तो आपके पास पहली लेयर में दो तरह की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दूसरी लेयर में भी दो तरह की इंफॉर्मेशन है, ठीक हो गया। जब आपके पास ये वाला एनालिसिस रन हो जाता है तो आपके पास जो रिजल्टेंट जो एट्रीब्यूट टेबल आएगा वो इस तरह से आएगा, ये आपके सामने है, ठीक है, कि अब आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स बन गए हैं। एक A है, दूसरा M है, फिर B है, फिर M है, फिर A है, फिर N है, फिर B है और N है। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है वो 4 कैटेगरीज बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द ओवरले एनालिसिस। और ओवरले एनालिसिस होता कैसे है, ये उसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि एट्रीब्यूट टेबल पे किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो बदल जाती है बेस्ड ऑन द इनपुट लेयर फंक्शंस, और उसके बाद जो है वो डिस्प्ले किस तरह से इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। Alright, so now we are going to talk about the raster data models. जैसा कि आपने वेक्टर डेटा मॉडल्स को डिस्कस किया है, तो उसमें आपके पास इनपुट फंक्शंस होते हैं, उसमें डाटा की प्रोसेसिंग होती है जिसमें डिजिटाइजेशन है, स्कैनिंग है, फिर उसके बाद एडिटिंग फंक्शंस हैं, डाटा को करेक्ट करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस लगाते हैं, टोपोलॉजिकल फंक्शंस हैं, फिर उसके बाद आप फीचर बेस्ड ओवरले एनालिसिस आपके पास है, इस तरह से लेयर बेस्ड ओवरले एनालिसिस है, फिर उसके बाद आउटपुट फंक्शंस हैं। जब एनालिसिस परफॉर्म होता है तो आपके पास जो आउटपुट फंक्शंस हैं वो फिर उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं, राइट। तो सिमिलरली जो रास्टर डाटा मॉडल्स हैं इसमें भी उसी तरह से फंक्शन सेम है, ठीक है। इनपुट फंक्शंस होंगे, डाटा की प्रोसेसिंग के फंक्शंस होंगे, एनालिसिस के फंक्शंस होंगे, और उसके बाद आपके पास होंगे आउटपुट जो रिजल्ट है उसको किस तरह से डिस्प्ले करना है उसके फंक्शंस होंगे, राइट। तो स्टेप्स वही है, लेकिन क्या है कि डाटा की जो टाइप है वो बदल गई है। And we already know that we can deal with either vector-based data analysis or raster-based data analysis in the GIS environment. It means we have two type of formats. One is the vector data format, and another is the raster data format. तो वेक्टर डाटा को हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, यहाँ पे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं रास्टर डाटा के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिफ्रेश अवर नॉलेज
व्हाट इज एक्चुअली रास्टर डेटा। रास्टर डेटा जो है वो होता क्या है, जैसे कि वेक्टर डेटा में हमने डिस्कस किया कि पॉइंट पॉइंट फंक्शंस होते हैं, लाइन फंक्शंस होते हैं और पॉलीगॉन फंक्शंस होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट और डेफिनेट शेप्स ऑफ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो रास्टर डेटा मॉडल सर्व्स टू क्वांटाइज, अब इसमें इसका क्या मतलब है, सर्व टू क्वांटाइज और डिवाइड स्पेस एज अ सीरीज ऑफ पैकेट्स or units, each of which represents a limited but defined amount of earth surface। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे ग्राफ शीट है, ग्राफ शीट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उस पे ग्रिड्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ग्रिड्स होंगे, तो ये उसी डेफिनेशन को आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये लेट्स सपोज ये आपके पास कोई रियल वर्ल्ड, आपके पास ये एरिया है, उसके अंदर ये सारे ग्रिड्स लगे हुए, इसका मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को आप कैसे शो कर रहे हैं, ग्रिड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये वही चीज है कि सीरीज ऑफ पैकेट्स, ये कि ग्रिड्स जो है ये पैकेट्स हैं और यूनिट्स हैं, each of which represent are limited, limited mean ये जो साइज है ग्रिड का ये लिमिटेड है। ठीक है, बट डिफाइंड अमाउंट ऑफ अर्थ सरफेस, कि ये जो है ये एक अर्थ की सरफेस को ये शो कर रहा है ये ग्रिड। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे भी वो दूसरी सरफेस को ग्रिड्स की फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो ये जो ग्रिड्स हैं ये छोटे बड़े हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ द डेटा, जिसको कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रिड्स की फॉर्म में भी डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेक्टर की फॉर्म में की फॉर्म में भी। ठीक है, सो इट मीन जो रास्टर डेटा है इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर्स, बैंड्स, थीम्स, ओवरलेज एंड मल्टीपल लेयर्स डेटा। कि जो रास्टर डेटा है इसको हम कैसे करते हैं, लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या बैंड्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं या थीम्स की फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर ओवरलेस क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स डाटा एनालिसिस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर इसी जो सेंटेंस है इसको हम एक्सपैंड करेंगे इन अपकमिंग जो आपके पास स्लाइड्स हैं उसके अंदर। ठीक है, कि बैंड से क्या मुराद है और थीम से क्या मुराद है। ठीक है, उसके अलावा डेफिनेटली जो रास्टर डाटा है उसका जो ईच सेल है वो एक जियोग्राफिक स्पेस को शो करता है, राइट। सो डिवाइडेड इनटू रेगुलर सेल्स ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशंस, रोज एंड कॉलम्स, नंबर्स। ठीक है, ये जैसे ये मैंने अभी इसको ड्रॉ किया है, पिछले लेक्चर में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। सो जो रास्टर डाटा है दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉन्टिन्यूअस लेयर फिनोमिना। ये भी हमने चीज डिस्कस की थी कि कॉन्टिन्यूअस लेयर फिनोमिना से मुराद ये है कि ऐसे फिनोमिना जिसकी कोई खास शेप नहीं होती। अब टेम्परेचर की कोई शेप नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ फिनोमिना, सो वी कैन, एंड दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय यूजिंग द डिवाइसेस, राइट। सो इट मीन दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना। So similarly, the contamination is also a kind of continuous phenomena, and it doesn't have a particular shape, and also the elevation data is also a continuous phenomena. So we can use such type of data by using the raster format, right? Then we have सिमिलरली जो आपके पास रास्टर फॉर्मेट जो है ये भी हमने डिस्कस किया कि रास्टर फॉर्मेट को आप वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से वेक्टर को रास्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉन्टिन्यूअस लेयर फिनोमिना, जो आपका जो है रास्टर फॉर्मेट। लेकिन हम जो है वो डिस्क्रीट फॉर ऑब्जेक्ट्स को भी शो कर सकते हैं, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये भी आप जो है वो आप शो कर सकते हैं रास्टर फॉर्मेट के अंदर। लेकिन ये बेस्ट सूटेड जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए बेस्ट सूटेड जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, वो आपके पास है वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, सो जो रिमोट सेंसिंग से आपके पास जो डेटा आता है, जो इमेजेस होते हैं, वो जनरली वो सारे रास्टर फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, जो रिमोट सेंसिंग से आपके पास डेटा आता है, जो सैटेलाइट बेस्ड डेटा है, वो सारा आपका पिक्सल बेस्ड होता है और वो जो डेटा है वो आपका रास्टर डेटा होता है। ठीक है, वो काइंड ऑफ पिक्चर्स होती हैं, तो उसकी अपनी एक रेजोल्यूशन होती है,
उसको जो जो आपका जो रिमोट सेंसिंग का डाटा है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कितनी टाइप की इसकी रेजोल्यूशंस होती है। तो वो जब आप रिमोट सेंसिंग को स्टार्ट करेंगे मिड टर्म के बाद, तो इंशाल्लाह उस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो फर्दर इलेबोरेशन रास्टर डाटा की कि इसमें पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, आपने जो रियल वर्ल्ड जो फिनोमेनाज है उसको पिक्सेल्स की फॉर्म में, आप पिक्सेल्स की वैल्यूज होती है। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर है तो टेम्परेचर जो होगा, सारे जो पिक्सल आपके किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जब आपने पिक्सेल्स में डिवाइड किया होगा तो हर पिक्सल का अपना टेम्परेचर होगा। ठीक है, वो हर पिक्सल की एक यूनिक वैल्यू होगी जो उस वक्त उस पर्टिकुलर एरिया में उसको शो कर रहा होगा कि वहां पे लेट्स सपोज ये 1 बाय 1 सेंटीमीटर का अगर ग्रिड है या पिक्सल है, तो उस 1 सेंटीमीटर में ग्राउंड के ऊपर इस वक्त टेम्परेचर की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगले सेंटीमीटर में क्या वैल्यू, फिर उससे आगे सो ऑन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस फिनोमेना। सिमिलरली जो रेजोल्यूशन है, आप इसको 1 बाय 1 किलोमीटर भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 किलोमीटर के एक पिक्सल के अंदर टेम्परेचर की एवरेज वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो डाटा की रेजोल्यूशन क्या है, आपके पास जो इमेजरी है उसकी रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आप डाटा की क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो पिक्सल क्या है, एब्रीविएशन फॉर पिक्चर एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल एलिमेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्विजेस में भी आ जाते हैं। द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल एलिमेंट दैट मेक्स अप एन इमेज, उसको हम कहते हैं पिक्सल। जैसे आपके कैमराज हैं, इसके पिक्सल्स होते हैं मेगापिक्सल्स में, जैसे 2 मेगापिक्सल है, 6 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल्स है। ठीक है, तो ये पिक्चर, ये जो डॉट्स पर इंच जो होते हैं, मेगा डॉट्स पर इंच, इस तरह से आप पिक्सल्स की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, पिक्चर की क्वालिटी को। तो जितने पिक्सल ज्यादा होते हैं, ठीक है, उतनी पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, उतना आप उसको जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सबको इस चीज से आप फेमिलियर हैं कि रेजोल्यूशन जो होती है वो एक्चुअली जितना पिक्सल का साइज छोटा होगा उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छी होगी। तो सिमिलरली जो सैटेलाइट बेस्ड डाटा है जिसमें उसका ग्रिड साइज या पिक्सल साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फीचर की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। So in raster processing, data is represented spatially on a matrix of grid cells. ये वही चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, called pixels, which are assigned values for image characteristics or attributes. कि वो जो पिक्सल्स होते हैं उनकी वैल्यूज होती है। जब आप आम एक फोटो लेते हैं तो उस पिक्सल्स में वैल्यू कोई नहीं होती, आप विजुअली मुख्तलिफ फीचर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे आप फोटोज लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि पीछे सीनरी में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, आपके अगर दोस्त हैं तो उसमें कौन कौन सा दोस्त कहाँ पे खड़ा हुआ है, फेस किधर है, उसने ड्रेस किधर है, हैंड्स किधर है, तो ये सारी चीजें आप रिकॉग्नाइज करते हैं विजुअली। ठीक है, लेकिन इसके पिक्सल्स की कोई वैल्यू नहीं होगी जब आप फोटो ले लेते हैं। लेकिन जो रिमोट सेंसिंग में जो डाटा आता है उसमें हर पिक्सल की एक वैल्यू होती है और वो उसकी रिफ्लेक्टिविटी होती है कि कौन सा फीचर कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो रिफ्लेक्टिविटी की बेस के ऊपर हर पिक्सल की एक वैल्यू आ जाती है। दिस इज द रीजन व्हाई बेस्ड ऑन दोज पिक्सल्स वैल्यूज वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन जहां पे आप उसकी रिमोट सेंसिंग आपने की है, आपने वहां का जो इमेज है वो उसको लिया है। ठीक है, तो मटेरियल्स की आइडेंटिफिकेशन आपकी पिक्सल्स की आइडेंटिफिकेशन से होता है कि पिक्सल्स का नंबर क्या है। पिक्सल जो होते हैं वो नंबर शो कर रहे होते हैं जिसको डिजिटल नंबर कहते हैं, DN। ठीक है, डिजिटल नंबर, और वो जो डिजिटल नंबर होता है वो रिफ्लेक्टिविटी को शो कर रहा होता है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टिविटी ऑफ एनी काइंड ऑफ फीचर दैट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ग्रिड। ठीक है, ऑलराइट। रेजोल्यूशन जो कि अभी हमने डिस्कस की कि इस पिक्सल का छोटा बड़ा होना जो है वो उसकी रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, a measure of the accuracy or detail of a graphic display expressed at dots per inch, pixels per line, lines per millimeter is called as spatial resolution. इसे कहते हैं SP, spatial resolution, कि पिक्सल का साइज जितना छोटा होगा रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपका रिमोट सेंसिंग का डाटा लेट्स सपोज 10 मीटर रेजोल्यूशन है एक ही, और एक ये 100 मीटर रेजोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोल्यूशन किसकी अच्छी होगी,
जिसका पिक्सल छोटा है, 10 मीटर वाले की रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छी होगी। इसका मतलब क्या होगा, 10 मीटर बाय 10 मीटर की एक ग्रिड में जो भी वैल्यूज हैं किसी पर्टिकुलर फीचर की, वो एवरेज आउट होके आपको एक वैल्यू देते हैं। ठीक है, अगर आप 100 बाय 100 मीटर ले लें एरिया, ऑब्वियसली 100 बाय 100 मीटर एरिया में बहुत सारी चीजें हो सकती है, उनकी एवरेज वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी, तो वो ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी जो कि आप 10 बाय 10 पे लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितना पिक्सल साइज छोटा होगा उतनी उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। सैटेलाइट्स जो होते हैं, इनके जो इमेजेस आते हैं, इनकी रेजोल्यूशन होती है, वो रेजोल्यूशन जो है वो डिफाइन करती है कि कौन सा जो है वो सेंसर वो ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन का, राइट। तो इसको हम कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। All right, so this is the raster data structure. raster data structure में फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये जो है ये डेफिनेट फीचर्स है। लेट्स सपोज ये आपके पास डिस्क्रीट फीचर्स है, आपके पास ये रेड कलर का एक फीचर है, ये ब्लू कलर का एक फीचर है, उसके बाद ग्रीन कलर का एक फीचर है। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, ये आपका वेक्टर फॉर्मेट है। तो उसको रास्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही जैसे ग्राफ पेपर पे आपने जिसपे ग्रिड्स नहीं लगे हुए, आपने ये वाले जो मैप है इसको क्रिएट किया है, लेकिन फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जैसे कंप्यूटर में भी होता है कि आप इसमें ग्रिड्स को चेक कर देते हैं, जब तो ग्रिड्स फिर इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। अब ग्रिड्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखेंगे ये यहाँ पे तो रेगुलर एक बाउंड्री है, ये देखिए जैसा जैसा फीचर है वैसी ही बाउंड्री है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे ये होगा कि आपके पास बाउंड्री इस किस्म की हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बाउंड्री है। अब इसको आप कंपेयर करें इस बाउंड्री के साथ, तो ये थोड़ी डिफरेंट है। अब ये जो है ये पिक्सल बेस्ड बाउंड्री है। ठीक है, पिक्सल बेस्ड बाउंड्री रेगुलर नहीं होती, उसमें लेट्स सपोज के कुछ हिस्सा ब्लू का यहाँ पे आ गया था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्रीन का हिस्सा आ गया था, यहाँ पे भी ग्रीन आ गया था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जिस पिक्सल में जिस पर्टिकुलर फीचर की इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी वो पिक्सल उसको मिल जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ग्रीन वाले की इंफॉर्मेशन ये ज्यादा थी, तो इसलिए ये सारे का सारा पिक्सल ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास ब्लू वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, ब्लू वाला पिक्सल ज्यादा बड़ा था, तो इसलिए ये सारे का सारा जो पिक्सल है फिर ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से ये सारा जो रास्टर बेस्ड जो डाटा होता है उसमें पिक्सल की फॉर्म में आपने शो करना होता है जो फीचर को, तो इसलिए फिर ये आपके पास पिक्सल जो है वो असाइन हो जाता है जिस जो आपकी बाउंड्री होती है वहां पे, क्योंकि ये शेयर्ड बाउंड्री होती है ना, उसमें दो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो जिस फीचर की इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है वो पिक्सल उसको असाइन हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई कि आपके पास जो जो डिस्क्रीट फीचर्स हैं उसके लिए वेक्टर डाटा जो है वो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रास्टर में, तो रास्टर में फिर वो इस तरह का वो फीचर नजर आएगा, राइट। ऑल राइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड मैप कि यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये अगर मैप है, ये सैटेलाइट इमेजरी है। ठीक है, तो सैटेलाइट इमेजरी में आप क्या करते हैं, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। जूम करके जब आप देखेंगे तो ये आपके पास ये ग्रिड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स शो कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को। लेट्स सपोज एलिवेशन का मैप है, तो हायर स्पॉट्स को आप रेड कलर से शो कर दे, जो लाइटेस्ट स्पॉट्स हैं वो आप, जैसे ये लेट्स सपोज ये ओशन है तो इसको आप ब्लू से शो कर दें। इन बिटवीन जो है वो डिफरेंट एलिवेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट के क्योंकि रास्टर और वेक्टर फॉर्मेट्स आपस में इंटरचेंजेबल है, तो अगर आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में डाटा है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वेक्टर फॉर्मेट, लेकिन जब आप इसको रास्टर में करेंगे तो ये आपके पास जो है वो पिक्सल बन जाएगा, वो जो पॉइंट है वो पिक्सल बन जाएगा, ये 2D फीचर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपके पास पॉइंट है, 0 डायमेंशनल फंक्शन फीचर। ठीक है, तो ये आपके पास जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं रास्टर में तो ये पिक्सल्स बन जाते हैं। सिमिलरली लाइन फीचर्स हैं, जैसे ये लाइन फीचर्स है, तो लाइन फीचर्स भी इंटरकनेक्शन बन जाता है, पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो लाइंस की कॉन्टिन्यूटी को वो पिक्सल शो करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये था, तो ये इस तरह हो गया। ठीक है,
ऑल राइट, सिमिलरली पॉलीगॉन्स हैं, तो पॉलीगॉन्स को भी आप इसी तरह से पिक्सेल्स की फॉर्म में शो करेंगे। इसमें वही बात जो अभी हमने डिस्कस की है कि अगर एक पिक्सल जो है उसके अंदर शेयर्ड फीचर आ जाते हैं, दो फीचर्स आ जाते हैं, तो जो फीचर डोमिनेंट होगा वो पिक्सल उसको असाइन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन वाई कि आपका जो वेक्टर डाटा है वो ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करता है आपके डेफिनेट या डिस्क्रीट फीचर्स को, और जो कॉन्टिन्यूअस फीचर्स होते हैं उसके लिए रास्टर डाटा बेस्ट है। So this is the slide where you can see that कि कुछ पिक्सल आपके शेयर्ड इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे दो तरह की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो दो तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ सकती है। ये ग्रीन है तो यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे एक्चुअली वो पिक्सल असाइन हो चुके हुए, जो इंफॉर्मेशन ज्यादा है, जैसे ये ग्रीन ज्यादा थी तो ये ग्रीन पिक्सल बन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्लू कम था, ये वाला ये ब्लू था तो ये ग्रीन, ये ग्रे ज्यादा था तो ये ग्रे पिक्सल बन गया है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो जहाँ पे डबल इंफॉर्मेशन होती है जिसको पार्शियल भी कह सकते हैं, तो वहां पे जिस फीचर की इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है वो उसको असाइन हो जाता है पिक्सल, राइट। ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइल फॉर्मेट्स ऑफ रास्टर डेटा। सिमिलरली जैसे हमने डिस्कस किया कि जो वेक्टर डाटा है उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट है शेप फाइल, SHP। वो शेप फाइल्स की फॉर्म में आप डाटा को शो करते हैं। सिमिलरली द रास्टर डाटा फॉर्मेट आल्सो हैव अ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो जिस तरह से आपकी पिक्चर्स हैं वो JPEG में होती हैं, PDF में भी आ सकती हैं, TIFF फॉर्मेट में भी आ सकती हैं, और PNG फॉर्मेट में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो रास्टर डाटा होता है इसका भी कोई ना कोई फॉर्मेट होता है जब वो एक्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें जो जेनेरिक रास्टर फाइल फॉर्मेट है उसको हम जो कि ज्यादातर रिमोट सेंसिंग इमेजेस का होता है उसे कहते हैं ASCII फॉर्मेट। ठीक है, ASCII फाइल फॉर्मेट, ये ASCII एक फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर सारे जो रिमोट सेंसिंग का डाटा है वो इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसे मर्ज हुआ होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर एक आप पर सेंसर है, उसकी उसमें 10 बैंड्स हैं, कि 10 बैंड्स में वो इंफॉर्मेशन लेता है। इट मींस कि 10 इमेजेस वो लेता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर बैंड की विड्थ जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसके जरिए से। ठीक है, तो वो सारी जो इमेजेस है वो एक फाइल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, वो जो फाइल है उसको आप कहते हैं ASCII फाइल फॉर्मेट। उसमें सारे इमेजेस 10 के 10 जो है वो उसके अंदर मर्ज हुए होंगे, उसको फिर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आप रिमोट सेंसिंग डाटा को यूज करेंगे आफ्टर द मिड टर्म, तो उसमें फॉर्मेट जो है ASCII के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट होता है, एक ऑप्शन के आपने डाटा को फ्लोटिंग पॉइंट से शो करना है या आपने उसको डिजिटल नंबर से शो करना है, तो वो इस तरह से आप ASCII फॉर्मेट के अंदर ये सिलेक्ट करते हैं। सिमिलरली रास्टर डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट, रास्टर डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, वो क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि फैसिलिटेट्स टू शेयर रास्टर डाटा बिटवीन डिफरेंट GIS एप्लीकेशंस। ये जो ASCII फाइल फॉर्मेट है इसको एज इट इज आप GIS के अंदर डिफरेंट एनालिसिस को यूज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उस फॉर्मेट को ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं जो कि GIS के अंदर रीडेबल है, जिसके ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, GIS एप्लीकेशंस आप उस पर कर सकते हैं। तो उसमें जैसे मोस्ट कॉमन जो है वो है TIFF फॉर्मेट, TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, और एक है GeoTIFF। TIFF और GeoTIFF में क्या फर्क है? TIFF फॉर्मेट जो है सिमिलरली जैसे पिक्चर आप सेव करते हैं JPEG में या आप उसको करते हैं PDF के अंदर, इस तरह से TIFF फॉर्मेट जो होता है ये अनकम्प्रेस्ड जो सैटेलाइट इमेज होता है उसको आप शो कर सकते हैं TIFF फॉर्मेट के अंदर, GIS के अंदर। और इसके साथ एक होता है GeoTIFF। GeoTIFF का मतलब ये है कि इसके अंदर जियो रेफरेंसिंग भी सेव होती है। खाली TIFF फॉर्मेट के अंदर जियो रेफरेंसिंग सेव नहीं होती कि कौन सा पिक्सल जो है उसकी मैप के ऊपर लोकेशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। उसके लिए आपको फाइल फॉर्मेट आप लेते हैं GeoTIFF, आप डाटा को सेव करते हैं GeoTIFF की फॉर्म में। ठीक है, ताकि आपके हर पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स भी प्रिजर्व।
ठीक है। Similarly, there are raster data compression formats. Raster data compression formats. तो जो कंप्रेशन फॉर्मेट्स हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आप डाटा को कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि जो आपका रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो आपका डाटा आता है सैटेलाइट बेस्ड, उस एक एक इमेज की जो साइज होती है वो 1 GB होता है, 2 GB होता है, अप टू 10 GB जो है वो भी एक इमेज का साइज हो सकता है। ठीक है। सो इतने बड़े साइज को फिर आपने क्या करना है, आप उसको जब GIS के अंदर डाटा प्रोसेसिंग करते हैं तो वो फिर उसको थोड़ा सा आप साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। एक तो ये कि प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए आप रिड्यूस करते हैं, दूसरा है कि डिस्प्ले करने के लिए। सपोज आपने सिर्फ उस इमेज को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपको JPEG फॉर्मेट चाहिए, GIF फॉर्मेट चाहिए, PDF फॉर्मेट चाहिए। ठीक है। तो इसे ये कंप्रेशन फॉर्मेट्स है कि जो सैटेलाइट बेस्ड डाटा को कंप्रेस करते हैं, तो वो कंप्रेशन रेशियो जो है वो 5:1 भी हो सकती है, 10:1 भी। लेट्स सपोज अगर आपके पास 5 GB का एक इमेज है, आप उसको 1 GB के इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 GB का है तो उसको आप जो है वो 100 MB के इमेज में शो कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये कंप्रेशन अप्लाई करते हैं तो वो जो डाटा आपका JPEG की फॉर्म में सेव होता है, GIF की फॉर्म में सेव होता है और PDF की फॉर्म में। ठीक है। तो जो रास्टर डाटा कंप्रेशन फॉर्मेट्स हैं उसमें सिर्फ आप डाटा को डिस्प्ले करते हैं, आप इमेज को डिस्प्ले करते हैं, उसके अंदर उसके कोऑर्डिनेट सेव नहीं होते, वो जस्ट लाइक एक सिंपल पिक्चर होती है, जो आप जैसे पिक्चर लेते हैं उसी तरह की वो पिक्चर हो जाती है सैटेलाइट डाटा की। तो जब आप ऑनलाइन डिफरेंट सोर्सेज पे जाते हैं जहां पे सैटेलाइट डाटा अवेलेबल है, लाइक नासा है, US जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाते हैं तो कुछ डाटा फ्रीली अवेलेबल है। वो डाटा को आपने डाउनलोड करना है तो वो ऑप्शन देता है कि आपने ASCII फॉर्मेट में करना है या GeoTIFF में करना है या JPEG में करना है। अगर आपने उस डाटा को GIS के अंदर यूज करना है, देन यू आर सपोज टू डाउनलोड दैट डाटा इन द फॉर्म ऑफ GeoTIFF, नॉट JPEG. JPEG फाइल फॉर्मेट इज ओनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा। ठीक है। All right. Then we have another type that is called as remote sensing image formats. कि जो रिमोट सेंसिंग इमेज फॉर्मेट्स हैं वो क्या होती है, एक होता है फाइल फॉर्मेट। ये जो तीनों हैं ये काइंड ऑफ फाइल फॉर्मेट आप देख लें। और ये जो है फाइल इमेज फॉर्मेट का मतलब ये कि जो आपका इमेज है, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक सैटेलाइट डाटा है, उसके पास 10 बैंड्स हैं, तो वो जो 10 बैंड्स हैं वो 10 इमेजेस होंगे। और लेकिन आप उसको जब ASCII फॉर्मेट में शो करेंगे तो वो सारा डाटा मर्ज हो चुका होगा। ठीक है। उसमें से आपने जब बैंड्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो फिर आपको जो है वो उसको डिफरेंट अदर फॉर्मेट्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके इमेजेस जो है वो लेट्स सपोज 10 इमेजेस आपके किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो है वो एक ही टाइम में एक सेंसर आपका वो कैप्चर करता है। तो वो जो इमेज है 10 इमेजेस हैं, अब वो जो डाटा है उसको स्टोर कैसे करना है, वो जो डाटा स्टोरेज है वो उसके लिए अलग से फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव जो ये वाला इमेज फॉर्मेट्स है, इसमें क्या होता है, स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट्स, मल्टी बैंड डाटा फॉर्मेट्स, BSQ, BIL एंड BIP। ये 3 तरह के आपके जो है ना वो डिफरेंट फॉर्मेट्स है जिसमें आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है इमेजेस की फॉर्म में, इमेजेस जो है उसके लेवल तक। फॉर एग्जांपल, ये अभी समझ नहीं आया होगा आपको, तो लेट्स स्टडी इट बाय सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, यू हैव 2 इमेजेस, एक बैंड A इमेज लेता है किसी पर्टिकुलर एरिया का और फिर एक बैंड B इमेज लेता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि बैंड का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो उसकी पर्टिकुलर एक रेंज जो है वो वेवलेंथ की वो यूज हो रही है किसी भी इमेज को कैप्चर करने के लिए। तो बैंड B का मतलब ये कि इसकी वो वेवलेंथ डिफरेंट होगी, इसकी रेंज भी डिफरेंट होगी। कि सेम एरिया जो है आप उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक आपके पास लेट्स सपोज सिंपल कैमरा है, दूसरा आपके पास थर्मल कैमरा है। ठीक है। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं।
तो इट मीन्स के जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो जब किसी भी पर्टिकुलर फीचर के ऊपर पड़ती हैं तो वो जो फीचर है उसकी रिफ्लेक्टिविटी डिफरेंट होगी, उसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट है उसके अगेंस्ट डिफरेंट होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप एक इमेज लेते हैं बैंड ए का, लेट्स सपोज इमेज आया, उसमें ये देखें कि ये एक इमेज आपके पास आ गया, अब इसमें ये पिक्सेल्स हैं, ये देखें कि ये पिक्सेल्स की फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। जैसे ये पिक्सल 1 है, ये पिक्सल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये जो डाटा है किस तरह से अरेंज किया गया, लेयर्स की फॉर्म में है। ये आप इस तरफ नीचे को जाएं तो ये आपके पास कॉलम है, अगर आप इधर जाएं तो ये आपके पास जो है वो लेयर्स की फॉर्म है। जैसे ये लेयर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 7 है। इस तरह से इसके अंदर जो है वो 7 ही आपके पास कॉलम्स भी है, ठीक है। लेयर्स और कॉलम्स की फॉर्म में आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है जो आपका डिजिटल इमेज फॉर्मेट है उसके अंदर। तो हर पिक्सल की एक वैल्यू, जैसे कि अगर आपके पास ये एलिवेशन का डाटा है तो ये आपके पास हर पिक्सल की जो है ना वो एक डायमेंशन होगी कि 1 बाय 1 मीटर के ऊपर एक एलिवेशन की वैल्यू क्या है, दूसरे की क्या है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया का जो इमेज है वो पिक्सल की फॉर्म में डिवाइडेड है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 2 में भी क्या है कि एरिया वही है लेकिन उस बैंड 2 में वैल्यूज डिफरेंट। अब देखिए ये इन पिक्सेल्स की वैल्यू सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है ये लाइट की नेचर कुछ और है, इसमें जो है वो जो मटेरियल है वो डिफरेंटली बिहेव भी कर सकता है, ठीक है। तो अब ये दो इमेजेस हैं, अब आपने इनको किसी फॉर्मेट के अंदर सेव करना है, ठीक है। तो उसमें यहां पे एक है बैंड सिक्वेंशियल फॉर्मेट, एक है बैंड सिक्वेंशियल फॉर्मेट। अब ये आपके पास ए बैंड है और ये आपके पास है बी बैंड, ठीक है। और अब आप यहां पे कर क्या रहे हैं, अब आपने इस दोनों इमेजेस को मतलब कंबाइन करके इसको सेव करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ऐसे करें कि सबसे पहले जो है ना आप जो इमेज ए है उसको आप पहले ले आए, ठीक है। ये आपका क्या है, इमेज ए, ठीक है। ये इमेज ए का जो जितना डाटा है पिक्सेल्स की फॉर्म में आपने सारा जो है वो इकट्ठा सेव कर लिया। उसके बाद जैसे ही वो पिक्सल ये वाला आखिरी आता है, इसके बाद आप ये वाला जो पिक्सल है इसकी इंफॉर्मेशन यहां से आगे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसे कहते हैं बैंड सिक्वेंशियल फॉर्मेट, मतलब सीक्वेंस की फॉर्म में एक बैंड की इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की और उसके साथ दूसरे बैंड का, जहां पे बैंड ए जो है उसकी इंफॉर्मेशन खत्म होती है वहां से फिर बैंड 2 की इंफॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर बैंड 3 हो तो बैंड 3 जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आगे स्टार्ट होगी और वो भी इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस फॉर्मेट को कहते हैं बैंड सिक्वेंशियल फॉर्मेट। इस तरह का जो क्वेश्चन है अगर पेपर में भी आ जाए तो यू कैन इजिली आई गेस गिव द आंसर बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स, ठीक है। Now there is another format that is called as band interleaved by line, BIL format. Band interleaved by line, that is called as BIL format. ठीक है. So how you are storing the data by using this format? For example, यहाँ पे interleaved by line, मतलब एक एक लाइन, लेट्स सपोज ये एक पर्टिकुलर एरिया है, उसकी एक लाइन पहले आपने ये सेव कर ली, उसके बाद उसी पर्टिकुलर एरिया के जो बैंड 2 के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आपने सेव कर ली, ठीक है। बैंड नंबर 1, बैंड नंबर 2 या बैंड ए और बी। उसके बाद फिर ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये आपकी लेयर नंबर 2 आ गई। उसके बाद इसकी लेयर नंबर 2 ये है, तो ये यहाँ पे फिर आगे आ गई, फिर उसके बाद ये तीसरी आ गई, चौथी आ गई, साइमल्टेनियसली पहली लेयर बैंड ए की, फिर पहली लेयर बैंड बी की, फिर बैंड अगर तीसरा भी है तो बैंड सी की, फिर बैंड डी की, और उसके बाद फिर दूसरी लेयर, फिर इसी तरह से सारों की दूसरी लेयर, फिर सारों की तीसरी लेयर। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है इसे क्या कहते हैं, BIL, ठीक है, बिल फॉर्मेट, बैंड इंटरलीव्ड बाय लाइन। लाइन बाय लाइन आपने उसको, या रो बाय रो जो है वो आपने जो इमेज का जो डाटा है उसको, बैंड्स का जो डाटा है उसको सेव करना है। Now band interleaved by pixel, BIP format. BIP format भी बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे आपने क्या किया
कि पिछले वाले में लाइन बाय लाइन डाटा सेव किया, यहाँ पे आपने पिक्सल बाय पिक्सल सेव करना है। मतलब पहले बैंड का पिक्सल उसकी वैल्यू, फिर दूसरे बैंड का पिक्सल उसकी वैल्यू, फिर अगर आपके पास तीसरा बैंड है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, चौथे की आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो ही बैंड है तो इसलिए आपने ऑल्टरनेट पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो इंफॉर्मेशन को सेव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम एरिया पे दो पिक्सल्स की वैल्यू, एक बैंड में ये है दूसरे में ये है, फिर आगे जो है वो इस तरह से आप उसको इकट्ठा करके जो है वो इमेज फॉर्मेट जो है उसको सेव करते हैं। So this method is called as band interleaved by pixel format। ठीक है, होपफुली आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क मी द क्वेश्चंस। कि जो रिमोट सेंसिंग से आपके पास जो डाटा आता है उसको आप इस तरह से सेव करते हैं या ऑलरेडी सेव्ड हुआ होता है डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज पे, वहां से फिर आप इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। जो सेकंड पार्ट है उसमें फिर हम रास्टर डाटा की एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके एडवांटेजेस लिमिटेशंस देखेंगे, और उसके बाद जो डिफरेंट एनालिसिस के मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।